محکمہ اسکول ایجوکیشن کا 5800 سرکاری اسکول ری آرگنائز کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کل 13,000 اسکولوں کو پرائیویٹ NGOs کے حوالے کیا جانا ہے۔ مذکورہ اسکولوں میں سے لاہور کے 200 اسکول بھی شامل ہیں۔ ری آرگنائز پروگرام کے تحت درخواستوں کی اسکروٹنی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب پبلک ری آرگنائزیشن اسکول پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 5800 اسکول جو ہیں وہ NGOs کے حوالے کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں کے 200 اسکول بھی جو ہے وہ ری آرگنائز پروگرام کے تحت نجی شعبے کے حوالے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور پیف کے اگر بات کی جائے تو پیف نے اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور اس حوالے سے جو اسکول کے اساتذہ ہوں گے ان کو قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے ٹریننگ فراہم کرے گا۔ وہ اسکول جو کہ ری آرگنائزیشن پروگرام کے تحت جو ہے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے اساتذہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اسکول بھی پرائیویٹائز نہ کیے جائیں۔ اگر بات کی جائے اشتہار کی تو 13,000 اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جانا تھا، لیکن اس کے بعد صوبائی وزیر تعلیم نے جو اعلان کیا تھا کہ 100 سے زائد تعداد والے اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹائز نہیں کیے جائیں گے، اور جن کی تعداد 100 سے کم ہوگی ان کو ہی پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے وہ اسکول جہاں پر سنگل ٹیچر ہوگا ان کی تعداد جو ہے وہ 5800 بنتی ہے، اور اس کی اسکروٹنی مکمل کر لی۔ اگست کے پہلے ہفتے میں ان اسکولوں کو جو ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کیے جانے کا امکان ہے۔ بہت شکریہ جنید ریاض۔ حکومت کا سابق نگران حکومت کا ایک اور مفید پلان کو آگے لے جانے کا فیصلہ۔ 9 سڑکوں کو کمرشلائزیشن کے منصوبوں کو حکومت سے منظور کرایا جائے گا۔ حکومت کا دوبارہ منظوری کے لیے LD اتھارٹی میں لے جانے کا بھی حتمی فیصلہ۔ سابق نگران حکومت میں بنائی گئی کمیٹی نے اس حوالے سے منظوری دے دی ہے۔ دور نایاب ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی دور نایاب۔ جی بالکل، پنجاب حکومت جو کہ مستقل حکومت ہے، انہوں نے نگران حکومت جو کہ سابق حکومت تھی اس کا ایک اور اہم منصوبہ اس کو فارورڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ مزید اس کو لے کے آگے چلیں گے، اور یہ LDA اور LDA کے ریونیو جنریشن سے جڑے ہوئے بہت ہی اہم ایک مفید فیصلہ تھا جو وہ سابق نگران حکومت نے کیا تھا کہ لاہور شہر کی ایسی شاہراہیں جو LDA کنٹرول ایریا میں ہیں جہاں پہ کمرشلائزیشن جو ہے وہ تقریباً 100% ہونے کے قریب ہے، لیکن قانونی طور پر وہاں پہ کمرشلائزیشن نہیں ہو سکتی، وہ فروزن روڈز ہیں فار کمرشلائزیشن، ان کی دوبارہ ری کلاسیفیکیشن کی جائے، اس کے بعد کمرشل کے لیے اس کو کھولا جائے۔ اس میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں DC CTO سمیت دیگر افسران موجود تھے، اور انہوں نے اس کمیٹی میں یہ 2-3 دفعہ ریویو کیا۔ اب بہرحال کچھ دن قبل اس کمیٹی کی حتمی رپورٹس موصول ہو گئی ہے، اور LDA کو 8 سڑکوں کے لیے جو ہے کمرشلائزیشن کھولنے کے لیے جو ہے وہ موضوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ آئندہ گورننگ باڈی کے اجلاس پہ رکھی جائے گی۔ LDA نے اس کو اتھارٹی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ آنے والے اتھارٹی کے اجلاس جس پہ بجٹ پیش کیا جائے گا اس کے ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے کھلنے سے اربوں روپے کا ریونیو جنریشن سالانہ آئے گا، جو اس وقت بالکل بھی نہیں کسی کو دیا جا رہا، بلکہ جو تاجر ہیں وہی غیر قانونی کمرشلائزیشن کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سرکار کو ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دور نایاب اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ منصورہ ملتان روڈ پر جماعت اسلامی خواتین کا احتجاجی مظاہرہ، خواتین کی حکومت اور پولیس کے خلاف نعرے بازی، پولیس کی جانب سے دھرنے میں جانے والی خواتین کی بسوں کو روکا گیا۔ دھرنے کے باعث ملتان روڈ پر ٹریفک روانی متاثر ہے۔ امیر ویسٹ ضلع لاہور عبدالعزیز عابد، ڈاکٹر رابعہ عامر ناظمہ، نائب امیر حلقہ شازیہ نے بھی شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، اقصیٰ سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقصیٰ بتائے گا ان کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ منصورہ جو ہے ملتان روڈ پر جماعت اسلامی کے کارکنان اسپیشلی جو خواتین ہیں کثیر تعداد میں یہاں پر شریک ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 26 جولائی کے دھرنے کے لیے وہ اسلام آباد راولپنڈی کے لیے نکل رہے تھے، لیکن ان کی بسوں کو جو ہے حراست میں لے لیا گیا، جس کے باعث وہاں پر جانے کا مشکل ہو چکا ہے۔ ابھی بھی کئی گھنٹے سے یہاں پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے، جس کے باعث یہاں پر کافی جو ہے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو چکی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی اور ضیاء الانصاری موجود ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے؟ سر مجھے بتائے گا کتنی دیر سے یہاں پہ احتجاجی مظاہرہ مزید کیا جائے گا، کیا مطالبات ہیں آپ کے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزشتہ 4 روز سے اسلام آباد میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی پاکستان کا دھرنا جاری ہے۔ اس کے جو بنیادی مطالبات ہیں اس میں یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو ناروا ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے جائیں، بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کے انکم ٹیکس کے جو سلیب مقرر کی گئی ہے وہ ختم کی جائے، IPPs
जो अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तानी की अवाम के खून निचोड़ कर हजम कर गए, उनके मुआहदे फौरी तौर पर मनसूख की जाएँ। ये चंद मुतालबात हैं जिनकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के अवाम हाफिज नईमुर-रहमान साहब की क़यादत में इकट्ठे हैं। आज इस्लामाबाद धरने में ख़वातीन के लिए दिन मखसूस था। लाहौर से बेशुमार हज़ारों की तादाद में ख़वातीन इस्लामाबाद धरने के लिए रवाना हुई हैं, लेकिन मुल्तान रोड मंसूरे से जब ख़वातीन रवाना होने लगी तो पंजाब हुकूमत ने और लाहौर की पुलिस ने उनको गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रोका है। हमें एहतजाज करना ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, हम उसको पुरअमन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की हुकूमत हमेशा से मिस मैनेजमेंट की बेहतरीन मिसाल रही है। एक और मरीम नवाज साहबा की सूरत में उस्मान बुज़दार हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है। हम ये समझते हैं कि ये पंजाब हुकूमत और लाहौर की पुलिस मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरह आवाम को कोई रिलीफ न मिले, किसी तरह महंगाई में कोई कमी वाक़या ना हो, अशराफिया जो बेशुमार मराहत हासिल कर रही है उनकी मराहत ख़त्म ना हो। हम ये समझते हैं कि ये अशराफिया को बरात ख़त्म करनी पड़ेगी। हुकूमत को हमारे मुतालबात तस्लीम बसों के हवाले से बताइएगा, अगर वो नहीं दी जाती तो क्या तब तक एहतजाज जारी रखा जाएगा? ये एक टोकन मुजाहरा है आज का, लेकिन हाफिज नईमुर-रहमान साहब ने ऐलान किया है कि हम चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स पर धरने हुए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम लाहौर में गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस या असम्बली हाल के सामने एक बड़ा धरने का आगाज करेंगे, जो मुसलसल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। बात है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे यहाँ पर एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया थी और तफसीलन आगाह कर रही थी। सदर पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन की यूनिवर्सिटी अफसरान से बदतमीजी का ये मामला है। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स और मुलाजमीन के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। पीयू टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर दी है। वाइस चांसलर्स ऑफिस के बाहर यूनिवर्सिटी इंतजामिया और अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मजीद सूरत हाल जानेंगे इमरान यूनुस से, जगह कीजिएगा। 4 रोज़ कबल पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के सदर चौधरी बिशारत की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, रजिस्ट्रार और ट्रेजर के साथ बदतमीज़ी जो है वो की गई थी, और इस वाक़े के ख़िलाफ़ पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसने इसको कंडेम किया था और बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की थी। ऑफिसर्स की जानिब से जो है प्रेस रिलीज़ जारी किए जाने के ख़िलाफ़ आज जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन जो हैं मुलाजमीन जो हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है, और इस वक्त वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। इस एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन जो हैं वो शामिल हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो दे रहे हैं, नारे जो हैं वो लगा रहे हैं, और इस मौके पर पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में हड़ताल जो है वो कर दी गई है, जिससे पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कामों के लिए आने वाले तलबा और शहरी जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं। बात की जाए तमाम तर दफातर जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में के, जिसमें डिग्री सेल और दीगर सेल्स शामिल हैं, उनमें ताले जो है वो लगा दिए गए हैं, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी की टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन है जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज जो है वो कर रही है, उन्होंने इस वक्त अपना एहतजाज जो है वो जारी रखने का फ़ैसला किया, और हड़ताल भी तब तक का ऐलान किया है जब तक उनके मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं हो जाते। जी इमरान यूनुस, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से रेलवे हेडक्वार्टर बिजली का निज़ाम बैठ चुका है। रेलवे हेडक्वार्टर की मेन सप्लाई केबल में फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल अमरा बर वक्त फॉल्ट तलाश करने में नाकाम हो चुका है। रेलवे शोबा इलेक्ट्रिकल 25 घंटे बाद भी बिजली बहाल करने में नाकाम है। अंडरग्राउंड केबल सप्लाई में फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सईद, बताइएगा इस हवाले से। असरात जो हैं वो ताहाल देखने में नज़र आ रहे हैं। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर का जो बिजली का मेन सप्लाई का सिस्टम है वो गुज़श्ता रोज़ से ही वो फॉल्ट की वजह से बंद है, वो होकर रह चुका है, और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर के दफातर जो हैं बिजली ना होने की वजह से तारीकी में है वो डूब गए हैं, और अफसरान व मुलाजमीन जो हैं वो सुबह से ही अपने कमरों से बाहर अपने दफ्तरी अमूर है वो सरअंजाम दे रहे हैं। और ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ सुबह 10:20 पर जो बारिश का सिलसिला शुरू
हुआ, उसकी वजह से रेलवे हेडक्वार्टर का जो अंडरग्राउंड सप्लाई का बिजली की सप्लाई का जो सिस्टम है उसके अंदर है वो फॉल्ट है वो आया था। और 25 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन शोभा इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट जो है वो बिजली की बहाली में कामयाब है, वो तहाल नहीं हो सका। और रेलवे शोभा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो हकाम है वो ये कहते हैं कि फ़ॉल्ट को तलाश कर लिया गया है, मज़ीद 1 से 2 घंटे के अंदर फॉल्ट है वो दूर कर लिया जाएगा और नई जो सप्लाई लाइन है, नई वायर है बिछाने का फैसला है वो किया गया है। सईद, बहुत शुक्रिया। बात करें कुछ मौसम की तो आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कान है। बारिश का मौजूदा सिलसिला 31 जुलाई तक रहेगा। मौसम का मजीद हवाल जान लेते हैं, हमारे साथ कोमल असलम हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। आसमान पर बादल टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद हैं। हवाओं का सिलसिला वक्फे से जारी है। सुबह के औकात में ही हमने देखा कि शहर के मुख्य मकामात पर रिमझिम हुई, जिसकी वजह से आज दिन भर गर्मी का जो जोर है वो भी कम महसूस किया जा रहा है फिल वक्त तक। और इसी के साथ साथ दर्जा हरारत के वाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर का मौसम इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। लाहौरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आने वाले दिनों में मजीद मौसम खुशगवार रहेगा। और NDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि शहर लाहौर समेत मुख्तलिफ जो शहर है वो सैलाब आ सकता है, मूसलाधार बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ मौसम काफ़ी खुशगवार रहने के हवाले से भी हिदायत कर दी गई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौरियों के हवाले से तो लाहौरियों को एक ऐप के हवाले से भी बता दिया गया है कि पाक NDMA एक ऐप है जो कि जो मौजूदा सूरत हाल है मौसम की और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा इस हवाले से आगाह करेगी, ताकि लाहौरी जो है लाहौरियों के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों के जो अवाम है वो भी इससे आगाही हासिल रख सके। इसी के साथ साथ दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं चल रही हैं और हवा में लाहौरी काफ़ी ज़्यादा मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। रंग बिरंगे फूल पौधे दरख्त हर चीज़ जो है वो आज यूँ लग रहा है कि एक अलग सा ही निखार उसमें देखने में नजर आ रहा है। बागों का शहर बहुत ही खूबसूरत से समा पेश कर रहा है। और इसी के साथ साथ लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कहीं पर हल्की, कहीं पर तेज, कहीं पर मूसलाधार बारिश रहने के हवाले से भी पेशगोई कर दी गई है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपनी एहतियात को यकीनी बनाए, लाहौर के मौसम को एंजॉय करें, लेकिन अपनी एहतियात को सबसे पहले जो है वो यकीनी बनाना है, क्योंकि लाहौरी हमारे साथ कोमल थी और मौसम का हवाल बता रही। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत से राब्ता। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन कराने बारे अपडेट मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने नया बल्दियाती एक्ट के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। डेडलाइन मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने प्रोग्रेस मांग ली। हुकूमत हाल नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास नहीं करा सकी। मज़ीद जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जगह कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ने महकमा बल्दियात को खत लिखा है कि महकमा बल्दियात को इलेक्शन कमीशन ने 1 माह का जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार करने का टाइम दिया था, डेडलाइन दी थी, लेकिन उस के दरमियान अभी तक जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ना वज़ीराना ने अप्रूवल दिया है, ना कबीना ने अप्रूवल दिया है और ना ही अभी तक स्टैंडिंग कमेटी किसी ने अप्रूवल दिया है और ना पंजाब असम्बली ने अप्रूवल दिया है। अभी तक एक्ट तैयार करके वज़ीराना सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ है और महकमा बल्दियात ने भेज दिया हुआ है, लेकिन अभी तक वो डाक में पड़ा हुआ है वज़ीराना की, अभी तक मंजूर नहीं हुआ सका, जिसकी वजह से महकमा इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया है और महकमा बल्दियात से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है कि बताया जाए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने टाइम लिया था, आपकी क्या अपडेट है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट क्यों मंजूर नहीं अभी तक हुआ और बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से महकमा जो बल्दियात है वो सही तरह काम नहीं कर रहा अभी तक। और इलेक्शन कमीशन जो है उसने हदबंदियाँ भी करनी है, हल्का बंदियाँ भी करनी है, फिर उसके बाद इलेक्शन होने हैं। लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन के लिए जल्द अज जल्द जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट क्यों तैयार नहीं हो सका, इस पर वजाहत मांगी है और महकमा बल्दियात से इस पर जवाब मांगा है कि लोकल गवर्नमेंट तैयार क्यों नहीं, फाइनल अप्रूवल क्यों नहीं हो सकी। इस पर महकमा बल्दियात से इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर जवाब मांग लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नए निज़ाम के तहत 10 अरब का इजाफी बोझ। टैक्स के लिए तशखीस शुदा 22 लाख की बजाय 45 लाख यूनिट शामिल होंगे। एडिशनल DG की जानिब से ये कहा गया है। सूबे में 8 से 10 अरब इजाफी प्रॉपर्टी टैक्स में वसूली मुतवक्के है। मज़ीद जानेंगे अरिसाही से। जगह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1 जनवरी से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम शहरों में जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स के असेस शुदा यूनिट्स हैं उन पर
नए टैक्स आयद किए जाएं। इसी हवाले से हम बात करेंगे कमेटी के हेड रिजवान शेरवानी साहब से। कौन से यूनिट्स हैं जिनसे आप प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेंगे? पहले प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपके किराए की प्रॉपर्टी के किराए की बुनियाद के ऊपर जो असेस होता था। वो आपको पता है कि किराए के ऊपर तो बहुत कम प्रॉपर्टीज होती, ज़्यादातर तो प्रॉपर्टी ज़ाती इस्तेमाल में होती हैं, तो इसलिए उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिशन थी इन्वॉल्व, और उसकी असेसमेंट का लोगों को तरीकाकार समझ नहीं आता था, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो कुछ और टैक्स है, ज़ाती इस्तेमाल में है तो और है। तो हमने एक नया तरीकाकार और एक नया निज़ाम वज़ा किया है जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसकी कैपिटल वैल्यू के ऊपर असेस होगा। और कैपिटल वैल्यू बड़ी आसान है, वो हर एक को पता है कि आपकी ज़मीन की वैल्यू डीसी रेट के मुताबिक क्या है और आपकी जो स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू डीसी रेट के मुताबिक क्या है। तो 1 जनवरी से जो हम टैक्स आगे जाके इम्प्लीमेंट करने जाएंगे वो हम इस तरह करेंगे कि लोगों को नवंबर से हम एक अपनी पोर्टल खोल देंगे जिसके ऊपर लोग अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे, जिस तरह वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। और ये जो टैक्स है ये फिर 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 जनवरी में अगर किसी का टैक्स का डिफरेंस होगा तो वो सिर्फ डिफरेंस देगा, जो उसने पहले साल पे कर दिया हुआ है वो टैक्स नहीं लेंगे। सबसे ज़्यादा तो वो लोग आएंगे टैक्स नेट के अंदर जो कि जिनके खाली प्लॉट्स हैं। दूसरे नंबर के ऊपर वो ऐसी प्रॉपर्टीज जो है ऑलरेडी असेस है उनके टैक्स की एडजस्टमेंट होगी, यानी उसमें कुछ लोगों का टैक्स जो है वो हमने एक कैप कर दी हुई है कि 15 से 20% से ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो अगर किसी का टैक्स नए निज़ाम के तहत डबल भी हो जाता है तो डबल नहीं हम लेंगे, उसका 10 से 15% सिर्फ इजाफा उसको पास। आखिरी सवाल ये बता दें कि कितने दिनों के अंदर अंदर शहरियों ने अपनी तफसीलात देनी होंगी? अगर कोई गलत अपनी तफसीलात ऐड करेगा तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? जी, अगर 2 महीने के अंदर अंदर नवंबर से लेके ये नवंबर दिसंबर 2 महीने के अंदर वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर वो कोई अपनी रिटर्न के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और बाद में पता चला कि जी ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बड़ी सादा सी इन्फॉर्मेशन है ज़मीन और स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा, एरिया कम शो करेगा, तो फिर जितना उसका टैक्स चोरी किया होगा उसका डबल जो है यानी कि 100% उसका जो है वो जुर्माना आयद होगा। जैसा कि आपने सुना कि हमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज रिजवान शेरवानी साहब बता रहे थे कि लाहौर समेत पंजाब भर में नवंबर में एक ऐप दे दी जाएगी जी अपनी तमाम प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, अपने घर के हवाले से तफसीलात खुद ही ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब।